format or structure data into another format or structure. Okay, so in simple words we can say like this, converting raw data into accurate data. Okay, simple language में हम बोल सकते हैं. तो basically at the time of transforming the data, उसको हम transformation, इसको हम बोलते हैं like data cleaning also. Data cleaning. Okay, data cleaning बोलते हैं, data cleansing बोलते हैं. Okay, cleansing. Okay, data cleansing और cleaning को हम cleansing भी बोलते हैं. Okay, so basically what we have to do as a data analyst, you have to clean the data also. Okay, so basically you can clean data in any kind of module. Like suppose if you in Excel, you can clean the data. Excel के अंदर भी हम clean करते हैं. Next SQL के अंदर भी हम clean करते हैं. SQL में हम data का format change कर देते हैं. हाँ, you can change the format of the data in SQL also. Okay, SQL में भी हम text based functions इस्तेमाल कर रहे थे. Okay, with the help of the text based functions we can clean our data also. Okay, next thing we are having the modules. Like हमारे पास modules है, okay, so next we are having Python. In Python also we can clean the data. Okay, and we are having Power BI. Okay, in Power BI we can also clean the data. Okay, तो basically यहाँ पर देखिए हमारे पास और एक मॉड्यूल है, that is nothing but statistic. Okay, तो basically statistic is a part of mathematics. Okay, अब right now mathematics तो पूरा अलग हो गया और statistics भी पूरी एक new field हो गई. ओके, और जो स्टैटिस्टिक पे जो एक्सपर्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिशियंस. ओके, तो स्टैटिस्टिक का प्रोसेस ये है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, कलेक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, क्लीनिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा, सेम एज डेटा एनालिस्ट. ओके, इफ अ पर्सन वर्किंग एज अ स्टैटिस्टिशियन means if a person is who knows how to do statistic, उसको डेटा एनालिस्ट भी आता है. ओके, बट डेटा एनालिसिस को क्या, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यू हैव टू नो दिस मॉड्यूल्स. ओके, यू हैव टू मास्टर दिस मॉड्यूल्स. ओके, हेलो, आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा आपका. Okay, so basically what we have to do, like as a data cleaning means आप अगर data clean कर रहे हैं तो what you have to do, you have to change one format data into another format. So basically in data cleaning what we can do, like we have to removing null values जिसको हम बोलेंगे empty value, null और empty values. Okay, then removing errors. अगर आपके पास कोई errors है, you have to remove that error, removing errors. Okay, next है you have to remove duplicate, remove duplicates. Okay, remove duplicates. And what you have to do, अब suppose आपका format सही नहीं है, like you have to convert the raw format into accurate format. ठीक है, अब suppose मैं यहाँ पर कल example दिया था, like text space में, like आपके पास jeans है, तो ये भी आपका jeans है,
ये भी आपका जीन्स है, बट द फॉर्मेट इज डिफरेंट. ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट. ओके, क्लियर है चीज? हाँ, तो लेट्स सी हाउ टू. मैं आप लोगों को फाइल शेयर करूंगा. लेट मी शेयर यू अ फाइल सो दैट वहां पर आप लोग, मैं आप लोगों को वहां पर स्टार्टिंग में पहले बताऊंगा कि कैसा आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, एक्सेल के अंदर आप ट्रिक्स यूज करके कैसा आप डेटा को क्लीन करते. नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे कि फाइल में से हम क्या क्या, बेसिकली फाइल के अंदर क्या रहता है, डेटा रहता है. So first of all, if you are getting any kind of data, you have to identify first. Okay, what are the categorical data, what are the numerical data? Okay, then what you have to do, you have to convert the raw data into accurate data. Okay, so let me share you that files. मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ. बैच 360. तो पहले आप लोग क्या करिए, एक्सेल डेटा क्लीनिंग फाइल ओपन करिए. ओके, एक्सेल डेटा क्लीनिंग फाइल. आप लोगों पूरों को फाइल मिल गई ना, फाइल्स व्हाट्सएप पे? हाँ, वैसे ही है. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बना के रखा, लाइक व्हाट यू हैव टू डू हियर. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे डिफरेंट शीट्स है. वी हैव टू परफॉर्म दिस. ओके, यू आर हैविंग 10 शीट्स हियर. So basically what you have to do, you have to extract first name and last name from the name column. Okay, तो यहाँ पर first name और last name कैसे extract करेंगे? Simple, you can go with the AI feature of Excel. Okay, like suppose अगर यहाँ पर आप Excel के अंदर if you train some cells, ठीक है, like suppose यहाँ पर मैं SYED टाइप करा, एंटर करा. Okay, and again I am typing MOHD here, MOHD. तो यहाँ पर देखिए एक्सेल क्या करा, ऑटो सजेस्ट कर लिया आपकी वैल्यूज कि आपको क्या होना है. यहाँ पर अगर यहाँ पर आप MOHD टाइप करें, MOHD एंड एंटर करें. ओके, तो बेसिकली द कंट्रोल ई फंक्शन मतलब कंट्रोल ई शॉर्टकट आपको क्या करता, ऑटो फिल करने में हेल्प करता हूँ. तो यहाँ पर अगर कंट्रोल ई प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए आपके जितने भी फर्स्ट नेम है फ्रॉम द नेम कॉलम पूरे यहाँ पर आ गए. देखिए. ओके, नेक्स्ट अगर लास्ट नेम होना है तो सिंपल यू कैन गो विद दिस वन, लाइक टाइप रहमान एंड देन अजीज. एज यू कैन सी जैसा यहाँ पर होवर हो गया आपका, सिंपल यू हैव टू एंटर इट टू गेट द ऑल वैल्यूज, गेट ऑल द वैल्यूज. ओके, this is the latest AI feature of Excel. But other than that, if you are using older version like 2013 or 2010 or 2007, so that time how to extract this first name and last name from the name column, I will show you that one. Okay, so you have to use the trick here, like yesterday we have used the test based formulas. Okay, तो सिंपल है. देखो, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल लेफ्ट फंक्शन यूज करना है. ओके,
इक्वल टू, यहां पर आप समझिए, यहां पर भी आप लोगों को शो होता फंक्शन, तो मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लूंगा मैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए, इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट से क्या हो रहा, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट। ओके, कौन से टेक्स्ट में से फाइंड करना है आपको, कौन से टेक्स्ट में से लेफ्ट एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यूज को, C6। ओके, क्लियर है, देन यू हैव टू गिव द कॉम। ये चीज हम पहले करते थे, बट राइट नाउ अब हम पूरा AI फीचर यूज करते हैं एक्सेल का। बट यहां पर पहले हम कैसा करते थे, यू हैव टू, अब ये चीज आप सेलेक्ट तो कर लिए सेल, राइट, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड द स्पेस बिटवीन द बिटवीन द वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं फाइंड फंक्शन लूंगा, फाइंड, एंड फाइंड के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, स्पेस। तो कोटेशंस में मैं स्पेस एक क्रिएट करूंगा, कॉमा दूंगा, एंड कोसे टेक्स्ट में से मेरे को फाइंड करना है स्पेस C6, C6। ओके, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड -1 टू रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ द राइट साइड। ओके, क्लोज करें, एंटर करें, एज यू कैन सी यहां पर देखिए आप, आपका पूरा वैल्यूज आ गए। ओके, लाइक यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर सिर्फ स्पेस से पहले जितने भी वर्ड्स है पूरे वैल्यूज आ गए, देखिए यहां पर। बट टुडे मींस अब आप लोगों को, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस वन। ओके, यू जस्ट हैव टू ट्रेन योरसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डेटा, एंड आपको वहां पर ऑटोमेटिकली डेटा सजेस्ट हो जाता। ओके, ऑटो सजेस्ट आपके वैल्यूज हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज, एनी डॉट्स इन दिस वन, फॉर्मूला यहां पर है, लेफ्ट C6 इज नथिंग बट अवर टेक्स्ट, टेक्स्ट में से क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्पेस, स्पेस में से कोसा टेक्स्ट, -1 to remove all the values. Okay, if you want to extract the last name from this cell, थोड़ा tricky है यहाँ पर भी, you have to use the right function because you are extracting the right, means extracting the text of from the right side. Okay, तो सिंपल यहाँ पर आप इक्वल टू RIGST राइट लेंगे। ओके, देन यहाँ पर सेल कौन सा है हमारा, टेक्स्ट कौन सा है, C6 कॉमा, then what you have to do, you have to find the length first. Okay, LEN से find out करेंगे आप, एक मिनट, okay, sorry for interruption. Okay, so basically what we are doing here, we are extracting the values, right, we are extracting the characters from the right side of the text. Okay, simple, we are यहाँ पर हम last name कैसा extract करेंगे, you have to go with the length function. Okay, जस्ट यहाँ पर आप लोग इसका क्या बोलते हैं, कोड को समझिए, मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपको क्या करना है, लेंथ के अंदर यू हैव टू यूज द ट्रिम फंक्शन, बिकॉज व्हाट वी आर ट्रिमिंग, वी आर स्पेसेस। ओके, ट्रिम ऑफ व्हाट, C6 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट माइनस करना है आपको, माइनस क्या करना है आपको, स्पेस से जितने भी वैल्यूज है वो पूरे माइनस कर देना है। तो यहां पर पहले फाइंड करेंगे हम, फाइंड व्हाट, स्पेस, राइट, स्पेस फाइंड आउट करें। नेक्स्ट कोसे इसमें से हाँ, तो उससे पहले हम आपको ट्रिम करना है, यहाँ पर ट्रिम भी कर देंगे हम, TRIM ट्रिम, एंड देन यहाँ पर C6। ओके, क्लोज करें 3 ब्रैकेट्स, एंटर करें। तो आप यहाँ पर एक मिनट, ब्रैकेट ज्यादा हो गए, 3 हो गए। ओके,
ओके ओके ओके, क्या हुआ यहाँ पर फिर से 4 क्यों आ जा रहे हैं? 1 2, अच्छा यहाँ पर एक्स्ट्रा ओपन हो गई। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा ओपन हो गई थी, एंटर। अब यहाँ पर देखिए, ओके क्लियर है ये चीज, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट नेम फ्रॉम द name column with the help of what? Formulas. Okay, we are using 4 formulas here. Okay, one is right formula, length formula, trim formula, find formula. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द राइट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट. ओके, देन यहाँ पर हम टेक्स्ट का सेल सेलेक्ट कर रहे हैं C6, एंड देन यहाँ पर हम लेंथ में से हम क्या कर रहे हैं, लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें से क्या कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं. ओके, ट्रिम कर रहे हैं C6. नेक्स्ट माइनस फाइंड, माइनस इन दोनों को किससे माइनस करें, फाइंड स्पेस माइनस स्पेस रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम ट्रिम C6. ओके, थोड़ा ट्रिकी है बट यू डोंट नीड टू मींस अब राइट नाउ वी डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो विद द AI फीचर ऑफ एक्सेल. ओके, रहमान कहाँ से, नहीं समझा मैं, बोलिए. हाँ, अब ये यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सपोज मेरे को यहाँ पर मैं ये रिमूव करूंगा. ओके, अब देखो सपोज मैं यहाँ पर सैयद लिखा, एक सेल ट्रेन करा, नेक्स्ट मेरे को ये सेल में से मोहम्मद होना है, तो देखो आप ऑटोमेटिकली पूरा आ जा रहा है. अब सपोज यहाँ से मेरे को रहमान होना है, हाँ थोड़ा 2 या 3 सेल आपको ट्रेन करना पड़ता और आपके बाकी के आ जाते थे. अजीज में देखिए, आप अजीज टाइप करें, यहाँ पर पूरे वैल्यूज आ गया. ओके, तो इन अवर लास्ट क्लास लास्ट सेशन कॉनकैटिनेट फंक्शन नहीं हुआ था, राइट हमारा. तो बेसिकली कॉनकैटिनेट फंक्शन हेल्प यू टू कॉनकैट मींस मर्ज टू सेल और वैल्यूज. ओके, टू सेल और टू वैल्यूज. तो विद द हेल्प ऑफ इक्वल कॉनकैट, तो आप यहाँ पर देखो कॉनकैट फंक्शन किससे चल रहा, कॉनकैट से. ओके, तो यहाँ पर इफ आई वांट टू मर्ज दिस टू सेल, ठीक है, सैयद और रहमान एक प्लेस पे होना है, ऑलरेडी हमारे पास है, बट कॉनकैट फंक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. तो with the help of concat function you can add 2 text into 1 cell. Okay, simple है, you have to select this text first, this one D6, and then यहाँ पर you have to create some space, otherwise उन्हें क्या होता, दोनों एक साथ merge हो जाते. तो यहाँ पर मैं shift quotations में space create कर रहा हूँ एक, then you have to say, select third value, third text, then close the bracket and enter it. As you can see यहाँ पर देखिए सैयद रहमान आपको आ गया. Concat D6 comma, then you are creating an empty space here with the help of quotations, then comma E6. अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी वैल्यूज है, जितने भी रिलेटिव रेफरेंस से आपके वैल्यूज फिल हो जाएंगे. ओके, क्लियर है चीज, एनी डाउट्स? यस सर. नेक्स्ट, अगर कोटेशंस अगर नहीं दिए तो 2 मर्ज हो जाते नहीं. हाँ, अगर आप सपोज यहाँ पर मैं वो भी बताऊंगा, इक्वल टू कॉनकैट, ठीक है, आपका टेक्स्ट ये है, देन सेकेंड टेक्स्ट इज E6. अब यहाँ पर क्लोज करूंगा तो यहाँ पर देखिए यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ स्पेस हियर. ठीक है, सो यू हैव टू क्रिएट मींस आपको अगर स्पेस देना है दोनों वैल्यूज के बीच में, देन यू कैन क्रिएट लाइक दिस, कोटेशंस के अंदर स्पेस आपको प्रोवाइड करना है. लाइक व्हाट, the last name. डबल टाइम का ये अवेलेबल लास्ट में एफी फेज है ना जी, एफी फेज इधर नहीं है ना सर, तो यहाँ पर तो है ना तुम्हारे पास. वही तो बोल रहे हैं यहाँ आ जाएगा. तो थोड़ा और ट्रेन करो उसको, मैं बताता हूँ ये चीज लास्ट मीन्स
एंड में बताता हूं मैं आपको वो चीज क्या करना है। ओके, तो नेक्स्ट चीज में जाइए। यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट द नंबर टू परसेंटेज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपको नंबर टू परसेंटेज करना है, मींस ये जितने भी वैल्यूज है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मेरे को। तो विद द हेल्प ऑफ पेज स्पेशल्स में ऑप्शन से देखिए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट। तो हम इन आवर लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन, okay, so in our last class what we have done, we have converted the value, we had converted the formulas into what, into values, right? So same like that, simple आपको यहाँ पर एक परसेंटेज क्रिएट करना है 1%। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज को कॉपी करना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to select this all and then right click में यहाँ पर पेज स्पेशल्स बोल के ऑप्शन है, देखिए पेज स्पेशल्स में you have to select पेज स्पेशल्स। ओके, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, पेज स्पेशल्स में you have to select the multiply ऑप्शन। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई क्लिक प्रेस करें, सेलेक्ट करें ऑप्शन, देन you have to click OK to convert all these values into what, percentage। Okay, so we are having lots of values in what, again I will show you how to convert this one. Simple, you have to copy this cell, okay, then you have to select all this one, right click and you have to select paste specials, it will open paste special dialog box। okay, then in operations you have to select multiply। अब सपोज यहाँ पर इंस्टेड ऑफ परसेंटेज आपको ये वैल्यूज में कुछ ऐड करना है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, वो कांस्टेंट नंबर ये पूरे वैल्यूज में ऐड करना है। सिंपल, यू कैन गो विद द ऐड फंक्शन। ओके, लेट मी शो यू अगेन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, 72 into 1%, तो यहाँ पर आपको पूरे वैल्यूज क्या होंगे, मल्टीप्लाई में मीन्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब सपोज यहाँ पर मेरे पास दूसरे वैल्यू से कंट्रोल Z फिर से करूंगा, तो सपोज इफ आई वांट टू ऐड 100 इन ऑल द वैल्यूज, ठीक है, आई वांट टू ऐड 100 इन ऑल द वैल्यूज, तो सिंपल यहाँ पर मैं 100 टाइप करूंगा, ये चीज कॉपी करूंगा मैं। ओके, देन आई विल सेलेक्ट ऑल दिस वैल्यूज, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल्स, एंड देन हियर व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट, व्हाट आई हैव टू सेलेक्ट, ऐड। सिंपल ओके करें, एज यू कैन सी 172 हो गए। देखिए अभी अगर डिवाइड करना है, यू कैन गो विद द डिवाइड। ओके, तो पेज स्पेशल्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, क्लियर विद दिस वन, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, लेट्स सी अवर थर्ड शीट। तो यहां पर देखिए, मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू एज अ डेटा क्लीनिंग, आपको क्या करना रहता, यू हैव टू रिमूव द ब्लैंक रोज ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली ब्लैंक रोज कहां पर है, देखिए यहाँ पर है, दिस इज नथिंग बट द ब्लैंक रोज। समटाइम्स अगर आपका कॉलम कैटेगरिकल कॉलम है लाइक दिस, ओके, सो स्टार्टिंग में बोला लाइक if you are getting any kind of data, you have to identify the data first. So basically names is our name column is nothing but our what, categorical column. Gender is also a categorical column. Okay, then department is also a categorical column. Date column hai, whereas salary is nothing but what, quantitative column. Okay, quantitative data hai. So what you have to do, you have to remove all these blank values. Okay, you have to remove these blank values. So what you have to do, simple है, देखिए यहाँ पर हमारा short data है। if you are working with a lakhs of data, if you are working on a lakhs of data, then you have to go like this also. तो ये simple short data में trick है, short data में आप long data में भी कर सकते हैं ये चीज। Simple, what you have to do, you have to select the data, जितना भी डेटा है पूरा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए यू कैन सेलेक्ट ऑल द डेटा। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। ओके, हाउ टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, जस्ट हैव टू प्रेस फंक्शन प्लस F5। ओके,
बेसिकली अगर आपके न्यू लैपटॉप्स है तो यू हैव टू गो विद द फंक्शन एंड F5. ओके, अगर आप ओल्ड लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली F5 से आप ओपन कर ले सकते हो दिस गो टू डायलॉग बॉक्स, और यू कैन गो विद द कंट्रोल जी. कंट्रोल जी से भी आपका गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होता. कंट्रोल जी, हाँ कंट्रोल जी से ओपन होता. लेट मी ओपन कंट्रोल जी. अगर डेटा सेलेक्ट है तो वो ओपन नहीं होता. ओके, अगर डेटा सेलेक्ट नहीं है तो ये ओपन हो जाता. तो सिंपल है, यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा फर्स्ट, कंट्रोल A, and then function F5. Then what you have to do, you have to go to the specials, and then here you have to select what, blank values. तो as you can see यहाँ पर देखिए डायरेक्टली क्या हो गया, blank values को select कर लिया. जहां जहां ब्लैक है मींस अगर आपका ये शीट में भी आपको ब्लैंक वैल्यूज को सिलेक्ट करना है तो सिंपल पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे ब्लैंक सेल्स है. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर देखिए अनब्लैंक सेल्स मींस जिसके अंदर सेल के अंदर वैल्यूज है वो सिलेक्ट नहीं करके उन्हें जो ब्लैंक वैल्यूज है उसको सिलेक्ट कर लिया. ओके, क्लियर है. तो हाउ टू रिमूव दिस रिकॉर्ड, सिंपल है, कंट्रोल हाइफन ओपन्स अ डिलीट डायलॉग बॉक्स. Okay, so what you have to do, here, you just have to select the entire row here. Okay, so with the help of entire row you can delete all the blank values record. Okay, simple, you have to click on OK. As you can see यहाँ पर हमारा blank values के पूरे records remove हो गए. entire column करे तो column remove हो जाते हैं. जहां जहां blank cell है ना पूरे values columns remove हो जाते हैं. Okay, clear with this one, how to remove blank rows? Any doubts? No, sir. No doubts? Okay, so let's see another sheet. यहाँ पर you have to find the duplicate value. देखो removing duplicate अलग है, finding duplicates अलग है. Okay, first you have to find the duplicates, then what you have to do, you have to remove the duplicate. So first we will find the duplicates in this two list. Basically invoice paid है और एक invoice paid रहमान का एक क्या है लिस्ट है. ओके, दोनों लिस्ट में कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन वैल्यूज को मेरे को फाइंड आउट करना है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वैल्यू. ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल you have to select all these values list. Okay, then with the help of control, simple यहाँ पर क्लिक करके control shift down arrow. Okay, this is how you have to select this one. And then in conditional formatting, basically conditional formatting help you to find the patterns. Okay, it will help you to find the patterns or data. ठीक है, so what we are doing here, we are finding the duplicate. So you have to go to the conditional formatting and then in highlight cell rules we are highlighting the duplicate values. So you have to select the duplicate values. तो यहाँ पर आप different उसके select कर सकते colors वगैरह. So just click on OK to get all the duplicate values. As you can see यहाँ पर देखिए INV 124 and INV 24 दोनों लिस्ट में कॉमन है. ओके, INV 190 INV 190 सेम है देखो दोनों के. वही लिस्ट में फुल डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है तो यू सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड देन गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आपको जो लिस्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके, तो आपका क्या था क्वेश्चन, ये था कि ये फाइल में डुप्लीकेट है या नहीं. तो सिंपल आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन and go to the conditional formatting, highlight cell rules and duplicate values. तो यहाँ पर कोई भी duplicate value नहीं है, that's why it's not selecting any kind of color here. Yes. Okay, clear with this one, how to find duplicate values? Yes, sir.
हेलो, यस सर, क्लियर। ओके, सो लेट्स सी अनदर शीट। हाँ, यहाँ पर देखिए समटाइम्स यू आर स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को जब भी डेटा आता यू डोंट नो हाउ द डेटा कम्स, ओके। आइदर आप लोगों को ये देखिए सिंपल स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट दिस रॉ डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलर्स में है डेटा, और वी आर हैविंग रैप टेक्स्ट ऑल्सो, और यहाँ पर अलाइनमेंट सही नहीं है, देखिए आप यहाँ पर अंडरलाइन है। सो व्हाट यू हैव एट द टाइम, हाउ टू क्लीन मींस हाउ टू क्लीन दिस फॉर्मेट। सिंपल है, देखिए एक्सेल के अंदर विद इन अ क्लिक आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस डेटा। सिंपल है, देखो यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गो टू द क्लियर एंड सेलेक्ट द क्लियर फॉर्मेट, ओके। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका डेटा पूरा चेंज हो गया, देखिए, ठीक है। इसके अंदर अलाइनमेंट सही नहीं थे, बोल्ड टेक्स्ट था, अंडरलाइन टेक्स्ट था, इटैलिक टेक्स्ट था, पूरा एक ही टेक्स्ट एक ही फॉर्मेट में आ गया था। आई विल शो यू अगेन, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए, देन क्लियर एंड देन सेलेक्ट क्लियर फॉर्मेट। अगर आप क्लियर ऑल सेलेक्ट करेंगे ना, पूरा डेटा चल जाएगा आपका। सो यू नीड टू सेलेक्ट द यूजफुल ऑप्शन, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट क्लियर फॉर्मेट। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट शीट, ओके। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो आप लोगों को समटाइम्स आपका डेटा क्या आता, इंस्टेड ऑफ कमिंग इन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, ऑल द डेटा कम्स इन अ सिंगल कॉलम, okay, whenever if you are scraping the data from website or scraping the data from database, तो वहां पर क्या होता मालूम, sometimes instead of getting in different different columns, एक ही कॉलम के अंदर आपका डेटा आ जाता like this। अब suppose this is nothing but the street name, this is nothing but the city name, and this is nothing but the state name, okay। so simple है, देखिए if you want to unstack this data, ठीक है, if you want to unstack this data, what you have to do, simple trick है, equal to, then you have to select this one, okay। then यहाँ पर city से हम ये select करेंगे, and then state में हम क्या करेंगे, equal to this select करेंगे। उसके बाद what you have to do, you have to select this one, okay, and then drag down to get the relative cell reference, ठीक है। यहाँ पर आप select करिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए साउथ कोरोलिना यहाँ पर आ गया, ठीक है, 68 एक्कर पॉइंट यहाँ पर आ गया, ओके। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव द ब्लैंक वैल्यूज हियर, ओके। तो सिंपल है, फंक्शन fi की स्पेशल्स एंड देन ब्लैंक्स, ओके करें, यहाँ पर आपके ब्लैंक वैल्यूज सेलेक्ट हो गए। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव दिस। तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ऑल द रिकॉर्ड्स, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द सेल्स अप, ठीक है, कंट्रोल हाइफन, यहां पर हम शिफ्ट सेल्स अप करेंगे, ओके। ओके करें, यहां पर देखो जितना भी डेटा था वो पूरा मींस ब्लैंक वैल्यूज थे पूरे रिमूव हो गए और प्रॉपर डेटा में आ गया हमारा डेटा। जैसा हमने ऊपर नीचे अपलोड किया था डाल दिया, अगर वही रो में डाल के करे तो, एक ही लाइन में डाल के उसको अपलोड करे तो नहीं आता अप डाउन, क्योंकि हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज कर रहे हैं ना, रिलेटिव, ये सेल का रेफरेंस यहाँ पर यूज करें हम, ये सेल का रेफरेंस यहाँ यूज करें, वो ऑटोमेट होने के लिए हम क्या करें, थोड़ा ऊपर नीचे करें हम उसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, नॉर्मली हम डेटा क्लीन नीच कर रहे हैं ना, ओके। क्लियर विद दिस वन, हाउ टू अनस्टैक दिस डेटा, ओके। नेक्स्ट है हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट, okay, basically we are having duplicate, means we are having a list, name and department. If you want to delete the duplicate from 2 columns, okay, तो basically यहाँ पर देखिए हमारे पास, I'll show you, okay, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बार फॉन्गी प्रोक्यूरमेंट है, यहाँ पर दोनों में सेम है, और यहाँ पर भी बार फॉन्गी प्रोक्यूरमेंट है। I want to delete the duplicate combination from these 2 columns, okay। name and department में जो भी basically यहाँ पर तो बहुत सारे बार फॉन्गी रिपीटेड टाइम है, बट दोनों में क्या कॉमन है वो डिलीट करना है मेरे। तो सिंपल है, देखें, you have to select all the data and then in data tab
we are having a option called remove duplicates. Okay, you have to select this one, and यहाँ पर आपको दोनों जो कॉलम्स में से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना है, you have to select that column. Okay, next what you have to do, you have to click on OK. As you can see हमारे पास कितने थे, 4 duplicates found and remove 15 unique values remain. We are not finding, we are not removing from one column, we are removing from 2 columns. Okay, that time you have to go like this. Again I will show you. Okay, so first of all what you have to do, you have to select all the data and then you have to go to the data tab. Here in data tool you are having an option called to remove duplicates. Simple, you have to click on this one, then you have to select both the columns. Okay, then what you have to do, you have to click on OK to delete duplicates. Okay, clear with this one? Okay, next thing 8. तो यहाँ पर तो ये चीज तो बहुत ही easy है आप लोगों को. Remove extra spaces with the help of trim function. You can remove the extra spaces from these values. तो ये चीज बताने की तो जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करिए. Next thing 9. Okay, how to extract numbers from text. So basically we will use AI tool for this one. AI method use करेंगे. तो simple है, देखो यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या है, ये टेक्स्ट में से 31.14. सिंपल मैं 31.14 टाइप करूंगा, एंटर करूंगा. ओके, अगेन आई विल ट्रेन दिस सेल 49 एंड एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए आपका डेटा आ गया. बट सम डेटा मींस सम सेल्स में क्या आ रहा, स्पेंड भी आ रहा. आई डोंट वांट दिस स्पेंड, तो अगेन आई विल टाइप another value like 44.92. I want this exact numbers from this all this text. Enter जैसा करेंगे, उसके बाद you have to do what, Control E to get all the values. ठीक है. Not only in 2 cells, we have to train some other cells also to get the right value sometime, because हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता. ठीक है, clear with this one? Any doubts? Anyone? Hello? No sir, clear. Okay. तो let's see another sheet. Last sheet है हमारी. Okay. तो यहाँ पर देखिए you have to extract the file name from full path. Okay. तो बेसिकली समटाइम्स आपके पास क्या आते मालूम, इंस्टेड ऑफ द डेटा आपके पास वहां पर URLs आ सकते. ओके, URL आते या फिर ईमेल्स आते. ठीक है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द राइट वर्ड्स. ओके, राइट डोमेन्स. अब सपोज हमारा ईमेल है, ईमेल के अंदर हमारे पास जीमेल भी है, और जीमेल के साथ साथ हमारे पास क्या है, याहू है, yahoo.com है, outlook.com है. ठीक है, डिफरेंट हमारे डोमेन से मेल्स आ सकते हैं हमारे. बट इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट मेल, ओनली मेल, आई डोंट वांट एनी वैल्यूज. ठीक है, जो नेम्स है वो नहीं होना है, सिर्फ डोमेन्स होना है. दैट टाइम यू कैन गो लाइक दिस वन. अब सपोज यहाँ पर हमारे पास फाइल पाथ है, तो बेसिकली फाइल पाथ इज नथिंग बट द डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल. ओके, so I want only the file name, I don't want the extension, and I also don't want the this path. Okay, so what you have to do, सिंपल ट्रिक है, देखिए ये चीज भी. तो यहाँ पर वो you have to select the data. Okay, you have to select the data and you have to use the find and replace option. ठीक है, find and replace dialog box. तो how to open find and replace dialog box? Control H. Okay, with the help of Control H you can open find and replace dialog box. Okay, suppose if you want to remove this जो भी स्लैश से पहले है, if you want to remove this that one, तो सिंपल है, देखो find what क्या करना है आपको, find slash. Okay, find slash. तो यहाँ पर मैं स्लैश टाइप करूंगा, बैकस्लैश. ओके, तो आपको क्या करना है, you want to remove all the values from slash before slash. Okay, so you have to give star. Okay, हाँ,
देन रिप्लेस विथ व्हाट, नथिंग। तो सिंपल यहाँ पर देखो, अगर सपोज मैं यहाँ पर रिप्लेस करना स्टार्ट करा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिप्लेस हो रहा। स्टार इज नथिंग बट टू रिमूव ऑल द वैल्यूज बिफोर स्लैश इंक्लूडिंग स्लैश ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दिया तो यहाँ पर देखो आप पूरे स्लैश से पहले मीन्स डेस्टिनेशन फाइल पाथ पूरा रिमूव हो गया। देखिए ओके। अब सपोज इफ यू वांट टू रिमूव दिस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किसके बाद है, डॉट के बाद है। तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा एंड देन फाइंड व्हाट में क्या करना है आपको, डॉट। एंड डॉट के बाद अगर आप इफ यू वांट टू रिमूव एनीथिंग यू हैव टू पुट स्टार, डॉट स्टार एंड रिप्लेस विथ व्हाट। आप यहाँ पर रिप्लेस में देख सकते हैं, रिप्लेस ऑल का जैसा करेंगे पूरे रिमूव हो गए। देखिए डॉट स्टार आना, स्टार इज नथिंग बट इट विल हेल्प यू टू रिमूव ऑल द वैल्यूज बिफोर दैट और आफ्टर दैट नहीं, बिफोर दैट। क्योंकि अब आप अगर एक वैल्यू एक कैरेक्टर के बाद अगर स्टार यूज कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर के साथ जितने भी वैल्यूज होंगे वो पूरे रिमूव कर देता है। अगर आप पहले यूज कर रहे स्टार और बाद में आप कुछ वैल्यू दे रहे तो उससे पहले के जितने भी वैल्यूज है और कैरेक्टर्स है वो पूरे रिमूव कर देंगे। ओके, क्लियर विद दिस वन? Any doubts regarding to this session? Extract number. No, sir. ये वाला एक्सपेंसेस का ना, तो सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको यू हैव टू ट्रेन सम वैल्यूज हियर, देयर इज 31.14 एंड 49 पॉइंट। तो यहाँ पर देखो फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 49 जैसे आप टाइप करें तो यहाँ पर आपको दूसरे वैल्यूज के साथ भी आ गया, स्पेंड भी दे रहा हूँ, बट वी डोंट वांट दिस स्पेंड, तो 0.8 एंटर करें। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, 44.92 टाइप करें, कंट्रोल ई, दैट्स इट। यू हैव टू ट्रेन सम सेल्स। ओके, सेल के अंदर थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है बिकॉज AI इज और डिपेंड मीन्स AI का पूरा क्या है मालूम, ट्रेनिंग पे है, मॉडल ट्रेनिंग। ओके, तो मॉडल ट्रेनिंग नथिंग बट यू हैव टू ट्रेन सम काइंड ऑफ सेल्स टू गेट द राइट वैल्यूज। 3 करे बाद ही प्रॉपर वैल्यू आ रहा, जब पहले 2 करे तो वैल्यू में थोड़े चेंज हो जाएगा। राइट, एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस सेशन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक बार रिमूव ब्लैंक रोज का बताया ना। ओके, आई विल शो यू दैट। यहाँ पर आपको बताना है ना रिमूव ब्लैंक रोज, तो बेसिकली आई विल रिमूव दिस वैल्यूज। ओके, यहाँ पर मैं रिमूव वैल्यूज करूंगा थोड़े बहुत, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिलेंगी। ओके, so what you have to do first you have to select the values. Okay, select the data, then what you have to do, you have to press function F5 to get the go to dialog box. Here you can go to specials and then select blank values, blank option, then you have to click on OK to select all the blank values. As you can see यहाँ पर पूरे blank value select हो गए, जहां जहां blank है पूरे value select हो गए। Then what you have to do, control hyphen to get the delete dialog box. अगर ये आप लोगों को dialog box नहीं मिल रहा तो you can go to the home tab and then here you can select these options. Okay, next control hyphen and then what you have to do, you have to select the entire row option. Simple, you have to select this one and then OK. It will remove all the blank values from the blank records from the data set. अभी डिलीट नॉर्मली में मतलब डिलीट ऑप्शन से डिलीट कराएं, बैक स्पेस के डिलीट करके इसे कुछ भी करके डिलीट करना। अभी आप ब्लैंक कॉलम्स डिलीट करना, ब्लैंक कॉलम्स। अब सपोज देखिए ये ब्लैंक कॉलम्स में आपको क्या डिफरेंट है बोले तो, अगर आप कॉलम सेलेक्ट करें तो ये पूरा कॉलम चल जाता है आप लोग। अब सपोज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो ये 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करा कंट्रोल A, देन फंक्शन F5 स्पेशल्स में ब्लैंक सेलेक्ट करा। ओके,
देन हियर कंट्रोल हाइफन में अगर मैं सपोज इफ आई सेलेक्ट एंटायर कॉलम, तो यहाँ पे पूरा कॉलम रिमूव हो जाता। देखिए सिर्फ एक नेम का कॉलम बचा है क्योंकि उसके अंदर कोई भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं। अगर आप रो सेलेक्ट करें तो पूरा रो रिमूव होता हूं। ओके, क्लियर है चीज? एनी डाउट्स? No, sir. Thank you. ओके, सर हम्म, 6th one